again the pillars, everybody. Thank you. राजेश खन्ना में मॉडल पब्लिशर सर, आपने कहा कि आप हिंदुज्म के ऊपर बनाते हैं जो यहाँ पर जो चलते हैं। पंजाब में जो है कि करीबन जो है कि जो एक आता लगभग है कि 20,000 हिंदू वहाँ पे भी ऐसे जनरेट हुए जब वहाँ पर जो है कि ऐसा हो, तो क्या उसके ऊपर भी आप कुछ ऐसा बनाएंगे या बनाने की कुछ ऐसा? आप लोग एक लिस्ट दे दीजिए कहाँ पे क्या क्या होगा और फिर मैं चुन लूँगा उनमें किस फिल्म बनाना है। पर हाँ, आपने अच्छी बात करी है, वो सत्य है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई मुझे गारंटी दे कि उस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाऊंगा और उसके बाद मुझे कोई रोकेगा नहीं, मैंने फिल्म रिलीज हो पाएगी, तो मैं बनाने को तैयार हूँ। आप अच्छी फिल्में बनाते हैं जो आप फाइल्स बनाते हैं, कश्मीर फाइल बनाते हैं, लेकिन कहीं भी नेशनल अवार्ड वगैरह पे या कहीं और अवार्ड जो है कि उसमें कहीं नहीं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको कश्मीर फाइल For coming here, seeing all of you here today means a lot to me, a lot to all of us, especially after what has happened day before yesterday. As you know, I am one of the producers of the film, and with me is Abhishek Agarwal, who's also a producer, and Vivek Agnihotri, of course, who's also the producer and the writer and director of the film. The film, of course, in question is the Bengal Files, and we are here today because the state government and the Kolkata police acting on orders from... Can you hear me now? Yes. Okay. So I'm saying we are here today because the state government and the Kolkata police, acting on orders from the highest authority, as you all know, forcibly stopped the trailer launch of our film. And since then we've been inundated with calls from the media, but rather than responding individually and making it piecemeal, before yesterday, we were trying to launch the trailer of our film, The Bengal Files, in Kolkata, and it was forcibly stopped by the state government and the police. And since then, we've been getting a lot of calls from the media, but instead of talking to each one separately and giving the same answers, we thought that as responsible producers, as responsible filmmakers, we should all come in one place and speak in one voice, because this is not just a film, this is, in our perception, whatever happened day before yesterday, we look at it as a threat to our democracy, plain and simple. So let me give you a brief background. Around 2012, Vivek and I, we were thinking about making films, and we thought about making a trilogy. Now, trilogy in itself as a concept, very few filmmakers around the world have been able to achieve. And to my knowledge, if I'm not mistaken, in India, only the great Satyajit Ray and Mani Ratnam. Is there any problem at the back? Can we have some silence team? तो एक ट्रिलॉजी एक ऐसी चीज़ है फिल्म मेकिंग में जो बहुत कम फिल्म मेकर्स ने अचीव की है द वर्ल्ड ओवर। और जहाँ तक मुझे पता है, सत्यजीत रे साहब ने एक ट्रिलॉजी वेरी सक्सेसफुली he's made a trilogy, and then Mani Ratnam has made a trilogy, and of course the great Shyam Benegal made a quartet. So हमने सोचा कि हम एक ट्रिलॉजी बनाएंगे ऑन आवर डेमोक्रेसी, और हमने जो हमारे 3 मुआ शेर हैं, our national emblem, we thought that we'll try and see what do they represent. जो पहला शेर है वो हमने सोचा is the right to truth, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी के जो 3 मेन पिलर्स होते हैं उसमें सत्य के ऊपर आपका सबसे ज्यादा अधिकार होता है। और उसमें हमने जब ताशकंद फाइल्स बनाई, उसमें हमने मुद्दा उठाया था हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की बहुत संदेहास्पद मृत्यु जो हुई थी ताशकंद में, उसके बारे में। अभी 60 साल होने को आए हैं, आज तक अगर उनकी मौत का सत्य हमें पता नहीं है, then what should a common man expect to be his right of truth in our democracy? दूसरी फिल्म राइट टू जस्टिस, बिकॉज विदाउट ट्रूथ देयर कैन बी नो जस्टिस। वहां पे हमने कश्मीरी पंडितों की बात की कि जो एक पूरा कश्मीरी
समूह पूरा, इतने लाखों में जो लोग उस वादी को छोड़ के आए वापस, 35 साल हो गए आज तक वो वापस नहीं जा पाए हैं, उनको न्याय नहीं मिला है अभी तक, then what does a common citizen expect? What would be a common citizen's right to justice? Can you open this Vivek please? मुद्दा हमने उठाया and that is right to life. जो पार्टीशन हुई थी भारत की, उसमें there was an unprecedented amount of violence and millions of people lost their lives and an equal number of people or maybe more were displaced. और हमारे जो रिसर्च में हमने देखा कि ऑलमोस्ट 78 years after our independence और आज भी बंगाल continues to witness the same horrors because a case in point is what we've recently seen in Murshidabad. So do we as citizens of India, do we have a right to life? This is a very pertinent question that we've asked in the Bengal files. And we feel that it's the most important and defining films of our time because जहाँ हमने 3 हुआ शेरों की बात की है तो हमारे नेशनल एम्ब्लेम में एक्चुअली 4 शेर हैं. चौथा शेर जो है वो हमें कभी दिखता नहीं, but it's always there in spirit, and that lion represents you, me, us, the people of India. It's we, the people of India. And because this film of ours is rooted in Bengal, and we are tracing back to Direct Action Day massacres and the Noakhali genocide and even the recent riots, we felt that it's most appropriate to launch the trailer in Bengal itself on August 16th, which is the anniversary of the Direct Action Day. Yet as you all witnessed, you saw what happened, the government silenced us, and we feel that it's an act which is not only arbitrary but it's also unconstitutional. And when our trailer was stopped, it was very laughable grounds because they kept telling us that we didn't have some kind of a municipal permission and it was a private gathering inside a 5-star hotel. And the videos are all out. I'm sure you've seen the chaos that followed. In that, a lot of women journalists got hurt. You saw how I was also, very uncomfortable, and thanks to Vivek that we managed to get out of that. So I think somewhere along the line, we felt that the police, the government is forgetting the basic duty, and that is protecting its citizens and especially the women. The modesty of women, I think that should have been the sole priority of the police, and their priority was to stop our trade. This is what is happening. So what has happened that day was not merely an assault on the film, but an assault on democracy itself. The voice of the fourth lion, the people of Bharat, was suppressed and censored by the brute state power, exactly as the voices of ordinary citizens were crushed under the Mughal and the British Raj. The absence of dignity, the absence of value of life, which is the very theme of our film. And on this Black Day, the state government itself proved that our theme is correct. So with that, I am going to close my opening statement and I am going to hand over the mic to Vivek. कलकत्ता से रात को पहुँचे और काफ़ी हम लोग अमेरिका में थे, 1 महीने से अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे थे. तो मैं आपको आई जस्ट टेक यू थ्रू एग्जैक्टली क्या हुआ, और मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसे देख के मैं तो चौंक ही गया, आप लोग भी चौंक जाएंगे. पर वो आज पहली बार मैं किसी को दिखा रहा हूँ, पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 क्या हुआ, लेकिन अगर यहाँ दिखाएंगे तो हम लोग सामने नहीं आ जाएंगे. तो हाँ, थोड़ा हम लोग जब लॉकडाउन लगा था, हम लोग कश्मीर फाइल्स की शूटिंग पे जाने वाले थे, तो शूटिंग के लिए रुक गए, मुंबई में जा नहीं पाए. तो हमारी जो रिसर्च टीम थी, हमने अगली फिल्म की रिसर्च चालू की, और तब से लेकर अब तक पिछले 5 साल में एक बहुत ही गहन अध्ययन के बाद, एक बहुत ही इंटेंसिव रिसर्च के बाद ये फिल्म ऐसी है कि पार्टीशन का सब्जेक्ट कोई अपने मन से कर नहीं सकता है. और उसमें चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे इंडियन हो, हमने 100 साल 102 साल के लोगों को ढूंढ के
जो सर्वाइवर्स थे उनके इंटरव्यूज किए। हमारा रिसर्च जो है वही 18,000 पेजों की समरी है। ओनली समरी इज 18,000 पेजेस। तो सोच लीजिए कितना इंटेंसिव रिसर्च होगा। मैं लेके भी आया हूं एक बुक जो उसके बाद की है, जो मैं आपको दिखाता हूं। जो इतना बड़ा रिसर्च मुझे नहीं लगता है भारत के फिल्मी इतिहास में किसी भी लैंग्वेज में किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कभी किया होगा। क्योंकि हम इसको अपनी बहुत जिम्मेदारी मानते हैं कि भारत में जब गांधी फिल्म बनी थी, जो कि उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनवाई थी एनएफडीसी के थ्रू, उसने पूरे वर्ल्ड में इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट को सारे वर्ल्ड को बताया। और उसका कारण यह है कि आज आप किसी भी शहर में जाएंगे आपको गांधी जी की स्टैचू मिलेगी बिकॉज ऑफ दैट वन फिल्म। तो हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है अपनी कि एक फिल्म कितनी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे सब्जेक्ट में। इसमें जितने इंडिया के हिस्टोरियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सबकी राय लेके ये फिल्म बनी है। जब मैंने सीबीएफसी में ये फिल्म दिखाई तो 50 सवाल खड़े हुए। इंडिया के बेस्ट हिस्टोरियंस को कमेटी में बुलाया गया, एग्जामिनिंग कमेटी में, रिव्यू कमेटी में। एक एक सवाल का हमने 100 डॉक्यूमेंट्स उनके सामने प्रेजेंट किए। ये फिल्म एग्जामिनिंग कमेटी के थ्रू गई, रिवीजन कमेटी के थ्रू गई, और तब जाके ये विदाउट एनी कट, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, एक चेंज के बिना इस फिल्म को सर्टिफिकेट मिला। और जब सर्टिफिकेट मिला तो हम लोगों ने, अमेरिका में बहुत डिमांड थी इस फिल्म की, और हमें लगा कि हम अपनी फिल्म को एज ए इंडियन सॉफ्ट पावर यूज करें। और हमने वहां के पॉलिसी मेकर्स, वहां के मीडिया, ज्यू सोसाइटी, ब्लैक सोसाइटी, स्पेनिश सोसाइटी, और भी जितने प्रोसिक्यूटेड लोग हैं उनको ये फिल्म वहां जाके दिखाई। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, पर आप जो लोग जानते हैं शायद उनने देखा भी होगा कि ये फिल्म 400 सीट के जो थिएटर थे वो खचाखच भरे थे, और उतनी ही वेट लिस्ट थी। और वहां के टॉप कांग्रेसमैन, सेनेटर्स। और एक बड़े गर्व की बात आपको बताता हूं, शायद ही भारत के इतिहास में किसी और फिल्म के साथ हुआ है, कश्मीर फाइल्स के साथ हुआ था। हम जब अमेरिका गए थे तो वहां कैपिटल हिल में, कैपिटल हिल मतलब वहां की संसद, वहां की पार्लियामेंट, वहां पे हम लोगों को इनवाइट किया गया था उस फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए। और इस बार फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है, और हमको वहां का कैपिटल हिल में इस बार फिर इनवाइट किया गया द बंगाल फाइल्स को प्रेजेंट करने। और बहुत सक्सेसफुली वहां के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के सामने हम इसको प्रेजेंट किया, और भारत की अपनी बात वहां पे रखी। लेकिन जब ये फिल्म सक्सेसफुल होने लगी, अमेरिका में ही मुझे खबर मिली कि हमारे अगेंस्ट एक के बाद एक कई सारी एफआईआर फाइल की गई वेस्ट बंगाल में। और ये खुलेआम, ऐसा नहीं है किसी आम आदमी ने किया, किसी को पता भी नहीं है इस फिल्म के अंदर क्या है। आज पहली बार तो मैंने इस फिल्म की थीम यहां पे दिखाई है, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था आपको दिखाई जाए। ये रातों रात हमने स्क्रीनर बना के आपके लिए तैयार किया है। टी शर्ट भी वही आप देख सकते हैं। तो जब इस फिल्म सक्सेसफुल होने लगी तो वेस्ट बंगाल में जो रूलिंग पार्टी है टीएमसी, उनके मेंबर्स ने हर जिले, हर मोहल्ले में जाके हमारे खिलाफ एफआईआर फाइल करनी चालू की। और वहां की जो पुलिस है उसने ये तक नहीं हमको बताया, नोटिस में जो उनने एफआईआर हमारे पास आई, ये तक नहीं बताया कि कारण क्या है एफआईआर के पीछे। मैं आपको दिखाता हूं जरा नंबर 3 एफआईआर। नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये एफआईआर देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। ऐसी तमाम है, ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद है कोई स्लाइड? या सो और ये सारे टीएमसी के वर्कर्स ओपनली सोशल मीडिया में लिख लिख के कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक फिल्म जो रिलीज नहीं हुई, किसी को पता नहीं, और भारत के ऐसे पार्टीशन के ऊपर है जो सारे वर्ल्ड को पता चलना चाहिए, सारी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। जिसने ये फिल्म देखी है लोग रोए हैं देख के कि क्या दुर्दशा हुई थी हमारी। और बल्कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को तो हमको आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री पे इससे डिफाइनिंग फिल्म कोई नहीं बनी आज तक। डायरेक्ट एक्शन के डे का वो ब्लैक डे, नुआखाली जेनोसाइड, जिसके कारण आज हमसे बंगाल छीन लिया गया, ईस्ट बंगाल बन गया, अब बांग्लादेश है। अगर वो 2 इवेंट्स नहीं हुए होते तो आज बांग्लादेश भारत का पार्ट होता और लाखों लोग नहीं मारे गए होते। और इतना ही नहीं, ये फिल्म तो बंगाल के गौरव के बारे में बात करती है। विश्व के इतिहास में फ्रांस के बाद एकमात्र ऐसी भारतीय स्टेट है जहां पे रेनेसांस हुआ, इंडियन रेनेसांस हुआ, उस ग्रेटनेस की बात करती है। नेशनलिस्ट मूवमेंट बंगाल से चालू हुआ,
वेदांतिक मूवमेंट बंगाल से चालू हुआ, एक से एक महान लोग वहां पे पैदा हुए, उसके गौरव की हमने क्या खोया है। कलकत्ता वर्ल्ड की कल्चरल कैपिटल हुआ करती थी, कलकत्ता वर्ल्ड की इंडस्ट्रियल कैपिटल हुआ करती थी, वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी, और आज उसकी क्या दुर्दशा हो गई, हमने क्या खोया है। लेकिन इस फिल्म पे लगातार रूलिंग पार्टी स्टेट पावर एफआईआर फाइल कर रहा है। इसके बाद जैसा पल्लवी जी ने बताया, चूंकि फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पे बेस्ड है, आप बताइए बॉलीवुड के जो लोग हैं अपनी फिल्म ईद पे रिलीज करते हैं, 15 अगस्त को करते हैं, 26 जनवरी को करते हैं, अपने जन्मदिन पे करते हैं, फिल्म की जो थीम होती है उसके हिसाब से करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, सारी दुनिया में होता है। तो डायरेक्ट एक्शन डे पे बनी फिल्म को 16 अगस्त को कलकत्ता में रिलीज करना कौन सा गुनाह है। और आपने आज तक कभी, आप सब मीडिया में है, कभी किसी ट्रेलर को आप लोगों ने आज तक सिनेमा हॉल के अलावा कहीं और देखा नहीं होगा। सारे ट्रेलर सिनेमा हॉल में लॉन्च किए जाते हैं। मैं आज इतने साल मेरा करियर हो गया, मेरी हर फिल्म का ट्रेलर सिनेमा हॉल में लॉन्च हुआ है, कहीं और नहीं होता है। तो हमने भारत की एक बहुत बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन, नंबर 1 मल्टीप्लेक्स चेन के थिएटर में, वहां पे एक बहुत बड़े मॉल में, वहां पे हमने बुक किया और 16 अगस्त को हम वहां पे लॉन्च करने वाले थे। हमारे पास सारी परमिशन थी, हमारी टीम वरना जाती क्यों वहां पे। और ट्रेलर लॉन्च करने के लिए कौन सी ऐसी बहुत बड़ी परमिशन लगती है, हर दिन तो ट्रेलर लॉन्च होते हैं फिल्मों के। लेकिन जब मैं पहुंचा कलकत्ता एयरपोर्ट पे तो मुझे पता चला कि हम वहां पे लॉन्च नहीं कर सकते, और अनऑफिशियली उनको बताया गया कि इसके पीछे कारण यह है कि वो जो एरिया है उनके ऊपर पथराव हो जाएगा और उनके लिए पॉलिटिकली कलकत्ता में बिजनेस करना असंभव हो जाएगा। इस डर से उन्होंने कहा कि प्लीज हमें माफ करिए, हम आपका ट्रेलर लॉन्च नहीं करेंगे, भले ही आपके पास सारे परमिशंस हों। हमने दूसरी थिएटर चेन को कांटेक्ट किया, उन्होंने भी हमको मना कर दिया। दिखाइए जरा नंबर 4 पीवीआर न्यूज, नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए, है उसमें नेक्स्ट। तो ऐसी बहुत सारे हैं, तमाम न्यूज ही पूरी सब जगह आप ही लोगों ने लिखी है। पर मैं भी हारने वालों में से नहीं हूं, डरने वालों में से नहीं हूं। और एक फिल्म मेकर का, एक क्रिएटिव आदमी का, एक कवि का, एक थिएटर वाले का, एक लेखक का, फिल्म मेकर का कर्तव्य होता है, मीडिया वालों का, कि फ्री स्पीच के अगेंस्ट लड़ाई लड़े। और आप जानते हैं मेरा पूरा करियर मैंने फ्री स्पीच के अगेंस्ट बहुत लड़ाई लड़ी है। तो हमने कहा हम उसको करेंगे। आईटीसी सोनार, आईटीसी रॉयल, जो कि कलकत्ता का हेरिटेज होटल है और भारत की नंबर 1 चेन है, उनसे अधिक प्रोफेशनल ताज ग्रुप और आईटीसी इंडिया के सबसे ज्यादा प्रोफेशनल होटल चेन है। और कलकत्ता वाले लोग उसको अपनी इज्जत मानते हैं, वो कहते हैं ये हमारा प्रेस्टीज, हमारा ऑनर है आईटीसी। उसके इसी तरह के बैंकेट हॉल में हमने उनसे सारी परमिशंस लेके उसके बाद उसका आयोजन किया, जैसे अभी हो रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्या ये संभव है? आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए, ये फंक्शन जो चल रहा है ये रातों रात हमने किया है, क्या ये संभव है बिना किसी परमिशन के? इसी तरह का हमने एक प्राइवेट किया जहां पे मीडिया वाले आए, 150 से 200 मीडिया वाले। वहां कलकत्ता का कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं है जो वहां पे नहीं आया। और वहां पे हमारा जब फंक्शन चालू हो गया, ऐसी स्क्रीन वहां पे भी लगी थी, बिल्कुल यही माहौल वहां था, वहीं से ये सब चीजें यहां आ गई हैं आज कल रात में। तो जब हमने शुरू किया, सब कुछ हुआ, बातचीत हुई, भाषणबाजी हुई, और जब ट्रेलर चलाने का वक्त आया, जैसे ही ट्रेलर को ऑन किया गया, आईटीसी के जो मैनेजर थे उन्होंने ऐसे ही जगह की, बिल्कुल जैसा यहां आप देख रहे हैं, वहां आके वो खड़े हो गए। उन्होंने बोला ये ट्रेलर नहीं चल सकता है। उनसे पूछा गया कि भाई क्यों, अभी अचानक क्या हो गया? अच्छा, उन्हीं की प्रेजेंस में, उन्हीं के सुपरविजन में, मेरी आंखों तक, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं, रात भर ये लगता है, आप सब जानते हैं, ट्रायल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, 25 बार चलता है। जब मैं वहां पे गया तो मैंने कहा जरा साउंड आउट मुझे चेक करा दो, और जब मैं साउंड चेक कर रहा था, वही मैनेजर साहब मेरे साथ खड़े हुए थे, कहते सर चाय पी लीजिए, कुछ कर लीजिए, समथिंग लाइक दैट, वही खातिरदारी में लगे हुए थे। और उन्हीं की प्रेजेंस में सब कुछ हुआ, उन्हीं के सुपरविजन में हुआ, उनकी सारी सिक्योरिटी वहां थी, उनकी सारी टीम वहां पे थी, हमारी इतनी बड़ी टीम थी। आप मुझे खुद बताइए कि कैसे संभव है कि इतना बड़ा मीडिया और सब कुछ पहुंचे अगर किसी को प्रॉब्लम हो। और प्रोग्राम जैसे अभी चल रहा है, एकदम से कोई आ जाए अभी और यहाँ पे कह दे कि नहीं आप अगला वो वीडियो नहीं दिखा सकते।
तो जब उनसे हमने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बड़ी सभ्यता के साथ, कुछ ऐसा नहीं, क्या प्रॉब्लम है, तो जब पता चला प्रॉब्लम होगा तो सारा मीडिया जो है उठ के उनकी तरफ चला गया। जब उनकी तरफ गया, मीडिया वालों ने पूछा सर हमें ये बताइए क्या प्रॉब्लम है। मीडिया ने सिर्फ सवाल पूछा कि सर प्रॉब्लम क्या है। अगर आप मुझे बताइए, अगर कोई एक इतने बड़े होटल का मैनेजर अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएगा क्यों नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप अगर पूछे क्या, अभी आके कोई रोक दे और अगर आप पूछे क्या प्रॉब्लम है तो आदमी बताएगा नहीं, बोलेगा साहब ये लोग जो हैं इनके अगेंस्ट FIR है, हम नहीं दिखा सकते, हमें गवर्नमेंट को ऑर्डर है, हम नहीं दिखा सकते, इनने जो है इलीगली हमारे प्रेमिस में घुस गए और जबरदस्ती ये टीवी लगा दिया और दिखाना चाह रहे हैं, हमें रोकना चाहते हैं, कुछ तो बोलेगा। पर आप जानना चाहते हैं क्या हुआ, मैं दिखाता हूं आपको। दिखाइए नंबर 5 ITC मैनेजर। और इस तरह से मैनेजर साहब भाग गए वहां से। बाद में मुझे उन्हें जो पता चला मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर उसी दिन सुबह मुझे खबर आई थी कि बहुत सारे TMC के मेंबर्स और पुलिस आने वाली है और हमारा प्रोग्राम किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं होगा चला पाना। और ये लोग सुबह से सोशल मीडिया में लग रहे थे। अगर आप लोग थोड़ा रिसर्च का शौक रखते हो तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आजकल तो बड़ा इजी है उसको सर्च करना। आप देखिए उस दिन सुबह लगातार सब लोग लिख रहे थे कि आप ये प्रोग्राम कर ही नहीं सकते, हम आपको चैलेंज करते हैं, होने ही नहीं दिया जाएगा। मैंने बहुत लाइटली लिया। हमें ये लगा कि उस शाम को हम लोग शहीद मीनार जाने वाले थे, जहां से सुहरावर्ती, जिनको बुचर ऑफ बंगाल बोला जाता है, जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त बंगाल के, उन्होंने भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि अब तो या तो डिस्ट्रॉयड इंडिया रहेगा, डिवाइडेड इंडिया, और इतने हिंदुओं को मारो किया कि डेमोग्राफी चेंज हो जाए और मुस्लिम्स मेजॉरिटी में आ जाए, ताकि कलकत्ता जो है वो पाकिस्तान में चला जाए। तो हमने कहा उस जगह जाके वो लाखों लोग जो मरे थे उनको हम अपना ट्रिब्यूट देंगे। लेकिन तो मेरा ये शक था कि ये सारी पुलिस और वर्कर जो है वहां आने वाले हैं। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था सपने में कि एक 5 स्टार होटल में, वो भी इंडिया के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में, इतनी भीड़ होगी। जब मैंने बाहर देखा जाके तो पुलिस ही पुलिस भरी हुई थी, लेकिन पुलिस अंदर नहीं आ रही थी क्योंकि पुलिस अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। वो चाहती थी होटल कैंसिल करें। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि ये हमारा राइट है एंड वी विल शो द ट्रेलर। जब मैनेजर चले गए मैंने कहा ट्रेलर चालू करिए। जैसे ही मैंने कहा ट्रेलर चालू करिए, ट्रेलर के 10 फ्रेम भी नहीं चले थे, पुलिस वॉक्स इन। और मैं आपको दिखाता हूं 2-3 छोटे छोटे वीडियोस, आपने देखे भी होंगे, काफी वायरल हो रहे, लेकिन मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पुलिस वाले according to you, we are doing something illegal. Why did you stop in the morning? Why is to now? Clearly asked. Nobody asked. Nobody asked, sir. Nobody asked. You showed me सर ये ब्यूरोक्रेटिक एक्सक्यूजेज मुझे मत दीजिए। किसी का परमिशन दिखाइए। सर यहाँ पे आप सब खड़े हैं, ये पुलिस वाले खड़े हैं, सुबह से यहाँ पुलिस खड़ी है, एक शब्द नहीं बोला किसी ने। चलते हुए शो में आपके सामने इनसे सवाल पूछे, मुझसे ask him, he's the government, not me. Stop and go, 5 स्टार ट्रेलर यहाँ चलते हुए कलकत्ता में पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर, रुकिए, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर पुलिस ने यहाँ पे किया है। सुबह से हजारों पुलिस यहाँ पे है। एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स क्यों है यहाँ पे? एक फिल्म मेकर की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? भारत के पार्टीशन के ऊपर जो फिल्म बनी है क्यों दबाया जा रहा है? आज 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे है आज, और आज के दिन यहाँ पे हमारी आवाज को सप्रेस किया गया है। इसका सवाल इनसे पूछिए, आस्क हिम द क्वेश्चन। आप जल्दी में शो में क्यों कर रहे हैं? आपने देखा, आपके सामने का कैमरे में बोला, नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज।
नहीं, आप नहीं दिखा Bengal has a own constitution. We have two constitutions, one Savat, India's and one Bengal's constitution. Democracy is dead in Bengal. हमारी टीम आज से 1.5-2 साल पहले रिसर्च करने वहां पे गई थी और तब उन लोगों को लोकल पुलिस ने इसी तरह पकड़ के होटल अरेस्ट कर दिया था, हाउस अरेस्ट नहीं, होटल अरेस्ट, और 2 दिन वहां रखा था और उसके बाद उनको उसी फ्लाइट से वापस भेज दिया था। उसके बाद का ये वीडियो है। ये 1.5-2 साल पहले से वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर साहब ने डिसाइड कर लिया था कि हमें अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने नाम लेके तब बोला था द बंगाल फाइल्स की टीम यहाँ आई है, आप सुन सकते हैं, मैं फिर से चलाता हूँ। द बंगाल फाइल्स की टीम यहाँ पे आई है, टीम मतलब रिसर्च करने गए थे हमारे लोग, टीम यहाँ आई है। और दूसरा उनने एक बहुत जो आपत्तिजनक स्टेटमेंट दिया है, जो कि एक जिसने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है उसके बाद बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है, ये क्राइम है। उन्होंने बोला है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो कश्मीर के लोगों को अपमानित करती है, ऐसा उन्होंने बोला। सुन लीजिए, अपमानित करती है। 5 लाख लोग जिनको काट मार के भगा दिया गया वहां से, कश्मीर से, उन लोगों को अपमानित करती है। अगर कश्मीरी पंडित आज ये आपके मार्फत सुन लेंगे तो आप सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरेगी। ये कैसे कोई बोल सकता है? एक बार फिर से चलाइए इसको। उन्होंने बोला डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था? ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। क्या जेनोसाइड नहीं हुआ डायरेक्ट एक्शन डे में? ये डिस्टॉर्टेड फैक्ट है। क्या नोआखली जेनोसाइड नहीं हुआ? जब गांधी जी 6 महीने रहे थे, जब भारत आजाद हुआ, गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, नोआखली में थे, क्योंकि वहां पे हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स में गांधी जी का स्टेटमेंट है, हिंदूज प्लीज रन अवे फ्रॉम नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई। हिंदुस्तान टाइम्स, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, जो हमारी फिल्म जब आप देखेंगे उसमें हमने वो डाला है, ओरिजिनल न्यूज़पेपर। मुर्शिदाबाद में जब राइट्स हुई, क्या डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं? और अगर डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स लगते तो फिल्म रिलीज होने के बाद, देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं कि 1.5-2 साल पहले ही जब हमारी रिसर्च टीम गई तभी आप डिसाइड कर लेंगे। और तीसरा बहुत आपत्तिजनक बात है, उन्होंने जो कश्मीरी हिंदुओं के बारे में जो बोला है, ये बहुत ही दिल को दुखाने वाली बात है। अब मैं आपको बताता हूं जो मुझे सोर्सेस के थ्रू, आप सब लोग जर्नलिस्ट हैं, आप भी इन्वेस्टिगेट कर, दिखाइए नंबर 8। ये ट्रेलर में जो ये लाइन है, ये हमारा ट्रेलर दिखाने के पहले, चूंकि जब ट्रायल चल रहे थे उसे देखा गया था, तो ये बोला गया था कि इसको हटवाओ इसमें से। सवाल ये उठता है, सारी दुनिया में क्रिश्चियन हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, इस्लामिक हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, बुद्धिस्ट हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, ज्यू हिस्ट्री पे फिल्म बनती है, और उन लोगों को काफी रिस्पेक्ट की जाती है। भारत में हिंदू हिस्ट्री पे पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जहां पे हिंदू रहते हैं, हिंदू सिविलाइजेशन है। एक और बड़ा तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एकमात्र एक ऐसा राष्ट्र है, सारी दुनिया ये समझती है कम्युनिस्ट थिंकिंग में कि मेजॉरिटी जो है वो ऑप्रेसर होती है, माइनॉरिटी ऑप्रेस्ड होती है। किसी भी हालत में आप जाएंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में ये माना जाता है कि जो लोग मेजॉरिटी में है वही ऑप्रेसर है, वही लोग गुनाह करते हैं और माइनॉरिटी हमेशा विक्टिम होती है। लेकिन हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां पे मेजॉरिटी गुलाम रही और माइनॉरिटी ने उस पर रूल किया, उसको परसिक्यूट किया, उसको गुलाम बनाया। पहले मुगल माइनॉरिटी ने, उसके बाद ब्रिटिश माइनॉरिटी ने। तो कि आप सारी उम्मीदें मुझसे ही करते हैं। तो मैं एक फिल्म मेकर हूं, भारत का प्रधानमंत्री नहीं। करेक्ट? नहीं, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं, हम लोग तो बड़ी उसके लिए धन्यवाद करता हूं आपका, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं इस बात का कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जहां पे कम से कम 200-300 डायरेक्टर्स हैं, आपने सोचा मैं ही एक डायरेक्टर हूं जो इस काबिल हूं कि मैं सारे जितने हिंदुस्तान में जो भी होता है दंगे फसाद, उसके ऊपर फिल्म बना सकता हूं। तो आपके सबसे पहले सवाल का करता हूं, मकसद की आपने बात करी। जी हाँ, ये मेरा मकसद है, मैं खुलेआम बोलता हूं, मैंने कभी अपनी बात छुपाई नहीं, मेरा एक एजेंडा है। मैं एज अ फिल्म मेकर भारत के वो छुपे हुए अनटोल्ड स्टोरीज, जिन सत्यों को दबाया गया, आप ताशकंद फाइल्स जब हमने बनाई थी, लोगों को लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में नहीं पता था, हमने उसके दोनों पहलू दिखाए।
लेफ्ट और राइट। पल्लवी जी ने तो बल्कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन का रोल प्ले किया था उसमें, और हमने कंक्लूड नहीं की फिल्म, हमने ये नहीं बोला क्या सही है क्या गलत है। कश्मीर फाइल्स में भी हमने नहीं बोला क्या सही है क्या गलत है, हमने दिखाया। और तीसरा, इस फिल्म में भी हमने वही किया है। लेकिन ये हमारा मकसद एकदम क्लियर है, मैं हिंदू सिविलाइजेशन के ऊपर फिल्म बनाता हूँ, इसलिए जो हिंदू हिस्ट्री है उसके ऊपर फिल्म बनाता हूँ। मैं अपने को इस काबिल नहीं समझता हूँ कि मैं इस्लामिक हिस्ट्री या क्रिश्चियन हिस्ट्री के ऊपर फिल्में बनाऊँ। आपका जो सवाल है मैं समझ गया उसको, आप क्या कहना चाह रहे थे। उसके ऊपर बहुत लोगों ने फिल्में बनाई हैं, जैसे कश्मीर में जो इस्लामिक हिस्ट्री है कश्मीर की, उसके ऊपर मणि रत्नम साहब ने फिल्म बनाई है रोजा, उसके ऊपर विशाल भारद्वाज साहब ने बनाई है हैदर। आपने तो कभी उनसे ये सवाल नहीं पूछा कि साहब आपने ये सारी फिल्में, आमिर खान साहब ने बनाई थी फना, किसी ने फिजा बनाई थी, तमाम फिल्में, मिशन कश्मीर बनाई है, विनोद चोपड़ा साहब महान डायरेक्टर है वो भी। आपने तो कभी उन लोगों से ये सवाल नहीं पूछा कि साहब आप जो फिल्म बना रहे हैं वो 90 के दशक में बेस्ड है, उसमें कश्मीरी पंडितों का जिक्र तक क्यों नहीं है। ये सवाल तो उनसे कभी क्यों कोई नहीं पूछता है। अभी अगर मैं समझिए, अगर मैं आपको वहां पे एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिल्म बनाता तो आप मुझसे कभी ये सवाल नहीं करते विवेक साहब आप दूसरा पहलू क्यों नहीं दिखाते। लेकिन अभी आपने मुझसे पूछा, इसका मतलब सबकॉन्शियसली सबके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हिंदुस्तान में हिंदू हिस्ट्री की फिल्में नहीं बननी चाहिए। तो 14 पर बनी तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि साहब उस वक्त में तो इतने सारे हिंदू उनके यहाँ काम करते थे और सारी उनकी गवर्नेंस वही चलाते थे, सारे इंटेलेक्चुअल्स वही लोग थे, उनको क्यों नहीं दर्शाया आपने अपनी फिल्म। पर मैं समझता हूं आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं दोनों पहलू दिखाऊं, मैं कोशिश करूंगा। मैं अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ हूं कि सारे इतने कंधे मजबूत नहीं है कि सारी दुनिया का बोझ उठा के चल सकूं, पर मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट, पहला आपने जो बोला लोग कहते हैं, ये कौन लोग हैं, कौन कहता है। आप किसी, अच्छा आपसे नहीं, जब सवाल मैं नहीं पूछ रहा, मैं जवाब दे रहा हूं, तो इसलिए सुनिए आप। कई लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, ये सबसे आसान चीज हो गई, लोग कहते हैं। मैंने आपको एक एक चीज पर्दे पे दिखाई है कि कौन लोग हैं जो कहते हैं। जो लोग कहते हैं, आपका काम है एज अ जर्नलिस्ट उसका फैक्ट चेक करना। ताशकंद फाइल्स भारत का जो जनरल इलेक्शंस थे उसके रिलीज, इलेक्शंस खत्म होने के बाद रिलीज हुई, इलेक्शंस चालू होने के बाद रिलीज हुई, आप डेट चेक कर लीजिए। कश्मीर फाइल्स यूपी इलेक्शन खत्म होने के बाद जिस दिन रिजल्ट्स आए उस दिन रिलीज हुई, जिस दिन रिजल्ट्स आए। तो इसलिए आपके दो फिल्मों के बारे में तो आप गलत हैं। तीसरा, बंगाल फाइल्स, अगला इलेक्शन कहां पे है, बिहार में, तो मुझे बिहार फाइल्स बनानी चाहिए थी। बंगाल का इलेक्शन है मार्च में, अप्रैल में है, और अगर मुझे इलेक्शन को कुछ करना होता तो मैं उस फिल्म को फरवरी में रिलीज करता। कोई भी मूर्ख होगा आदमी जो कि अप्रैल के इलेक्शन की अभी रिलीज करेगा, वो बिजनेस नहीं समझता। सुन लिए नहीं, अभी आपने सवाल पूछा, मेरे को जवाब देने का राइट है, अब मैं जवाब दूंगा आपको, तो आप सुनिए पहले। चौथी बात यह है कि जो फिल्म डायरेक्शन डे के बारे में है, जो फिल्म नौकरी राइट्स के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में है, वो फिल्म किसी भी सरकार का कैसे फायदा कर सकती है। और अगर मेरे फिल्म बनाने से किसी का फायदा होता है तो पुण्य का काम है, इसमें क्या बुरी बात है। नहीं, मेरा ये कहना था कि आपने बोला लोग क्या करते हैं, आपने बोला कि मैं भी सूत्रों पर विश्वास करता हूँ, मेरे भी सूत्र होते हैं। उसी तरह मैं बोलता हूँ कि कौन बोल रहे हैं, तो गोपाल मुखर्जी के पोते शांतनु मुखर्जी बोल रहे हैं, जिनका आधार लेकर आप कश्मीर फाइल्स को 2 नेशनल अवार्ड मिले थे, कश्मीर फाइल्स को 3 नेशनल अवार्ड मिले थे, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, कर लीजिए। मैं एक सेकंड कुछ सुन सकते हैं आप? मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, जहाँ तक आर्ट का सवाल है, आप जब भी कोई पेंटिंग देखते हैं तो आप किस नज़र से उस पेंटिंग को देखते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि वहाँ जाके आपको खूब हंसी आएगी या आप खूब एंटरटेन होंगे? जब आप पंडित रविशंकर जी की सितार सुनने जाते थे तो क्या आपको लगता था कि अरे आज तो खूब मज़ा आएगा? या आप कभी कोई अच्छी शिल्पकला जब देखते हैं तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? सिनेमा हमारे हिसाब से इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट, क्योंकि इस एक छतरी के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे, there are 25 different crafts that come together
and give their best. इसलिए सिनेमा को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और हिस्ट्री को लेके और हमारी भारत की हिस्ट्री को लेके हम कुछ करना चाहते थे. And as filmmakers, we thought that art is the best medium to project our history. क्योंकि as artists, all of us, we have a little rebel inside us. We have to be a little anti-establishment. क्योंकि जब तक आप नहीं होते तब तक आप समाज को आईना नहीं दिखा सकते. हमारा ये काम है, हम बने इस वजह से हैं क्योंकि हम लोगों को एक आईना दिखा सकते. तो ये हमारा जो काम है, उस काम को लेके आपने कुछ एक सवाल पूछे, they were highly appreciated. लेकिन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी और ये सब अगर हम लोग पहले ही बात करते हैं तो वो फिल्म बनाने का एक जो मज़ा होता है, एक आर्टिस्ट का जो एक हाई होता है, वो निकल जाता है. तो मेरी प्लीज़ आपसे विनती है, हमारे साथ तो खैर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है, लेकिन फॉर एनीवन, please let the film first release before asking such questions. Thank you very much.